बेटा जी, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन। ओके सर। First of all, I will like to revise some previous concepts. This one is an object with weight mg. This one is the normal reaction R. In this case, the body is at rest. With no force acting on it. Object. Now, this one is the object. This one is weight. This one is normal reaction R. And the body is moving in this direction. What is the direction of the force resisting the motion? Left. Left, yes. This one is the force resisting the motion. We may call this one friction. This one is the resistance force. या हम इसको फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। अब when two contact force क्या होती है? What is contact force? Say R. When two objects are in contact with each other, there is a contact force. Which is the resultant of R and frictional force F. Now, from the second diagram, you can see that this one is R and this one is the frictional force with red. This one is F. When we will add these two forces, the resultant is this one. This one is the contact force. This one is the contact force. In this case, the contact force is in this direction. This one is the contact force. Now, in the first case, when the body is at rest and with no force acting on it, normal reaction is the contact force. Normal reaction is the
contact force. In the diagram number 1, there is no force acting on the body, and in this case the contact force is the normal reaction. Is this clear? जी sir. Okay. Now friction is further subdivided into two parts, mu and r. Mu is known as the coefficient of friction and r is the normal reaction. Mu varies from surface to surface. If my both hands are in contact with each other, then the value of mu is different. If there is a ballpoint on my hand, then the coefficient of friction between the ballpoint and my hand is different. If I put my hand on the table, then there is a friction, and the coefficient of friction between my hand and the table is different. Is change its the value of mu changes from surface to surface. And the formula for the friction is F is equal to mu r. Is there any question? नहीं sir. Okay. Okay. The maximum resistance produced by a body is mu r. The maximum resistance between the two objects is always mu r. The maximum resistance between the two objects is always mu r. Now I will further elaborate the concept of friction with the help of examples. Now, this one is an object. This one is your car having maximum resistance, maximum friction is equal to 80 Newton. Okay. Now, in this case, in the above diagram, there is no force acting on the object. Now, when we will apply a force of magnitude 10 Newton to this object, what is the resistance of the object? Sir, 10 is equal to Is the object, 80 R. will the object move? Its No. maximum resistance is 80. Will the object move? Now, what is the value of the resistance in this case when you will apply a force of 10 Newton on this object?
सर मुझे इतना पता है कि मूव नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है फोर्स से। If the object is not moving, then it is in equilibrium. यस। Okay. The applied force is equal to the resistance force. नो। So which one is greater? फ्रिक्शन। If the friction is greater, in this case, when we will apply a force of 10 Newton, the object will generate a resistance of 10 Newton. Okay. The object ओके। will not apply the maximum friction of 80. If the object will apply a maximum force, a maximum friction opposite to 10, then the object should move towards the left side. As you know that friction always acts in the direction opposite to the applied force. Then the direction of friction is towards the left side. And if the friction is 80 at this moment, when 10 is applied to the object, then the object should move towards the left side because friction is 80 and the applied force is 10. But the body is in equilibrium. बॉडी जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम में है. जब हम उस पर 10 फोर्स लगाएंगे तो उससे ऑपोजिट 10 न्यूटन ही जनरेट होगी. सही सर मैं समझ गया। Okay. When we will apply a force of 20 Newton on this object, what is the value of the resistance? 20। Very good. When we will apply a force of 30 Newton onto this object, what is the value of the resistance? 30 न्यूटन। Sorry? 30 न्यूटन सर। Yes. And when we will apply a force of 80 Newton on this object, what is the resistance force? 80 न्यूटन। That's good. And when we will apply a force of 81 Newton on this object, what is the resistance force? 80 न्यूटन। Yes, very good. And in this case, the force applied is greater than the resistance and the body should move towards the right side. जी सर। Okay. Is there any confusion? नहीं सर। Okay. सर ये एक क्वेश्चन है। जी. फ्रिक्शन जैसे 81 हो गया ना तो जो फोर्स अप्लाइड है जी तो जो बेटा. फ्रिक्शन है फिर वो खत्म नहीं हो जाएगा कि वो 80 ही रहता है। नहीं 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 नहीं. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इससे. हम दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे हैं. ठीक है. आपकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस 80 है. मैं आप 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा ना, यू विल ट्राई टू बैलेंस योर आर्म. तो आप भी 10 न्यूटन जनरेट कर लोगे. मैं 20 करूंगा, आप भी 20 कर लोगे. मैं 30 करूंगा, आप भी 30 कर लेंगे. और जब हम जो है, जब मैं 80 करूंगा, आप भी 80 कर लेंगे. जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी ना, दैट वन इज नोन एज द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पहले भी था, लेकिन जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो दैट सिचुएशन इज नोन एज द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. उसके बाद हद हो जाएगी. जैसे ही मेरी फोर्स 80.001 होगी, आपका हाथ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स द डाउन साइड. ओके. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो 80 से ज्यादा नहीं हो सकती. अब जैसे जैसे ही मेरी फोर्स 80 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, आपका हाथ नीचे मूव करना शुरू कर देगा. और थ्रू आउट दैट मोशन आपकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी या 80 रहेगी? से 80 ही रहेगी। 80 ही रहेगी. बिल्कुल सही है. यही फ्रिक्शन का केस होता है. If the maximum resistance is 80, if we will apply a force of 10 Newton, the object will generate the resistance force of 10 Newton. 50 Newton, 50 Newton, 80 Newton, 80 Newton. And this one is the case of limiting equilibrium. And after that, the equilibrium will break and the when the applied force will be greater than the resistance force, the object will starts to move. And throughout the motion, the resistance will remain
the friction will remain at its maximum value, and the maximum resistance is mu r. Maximum resistance is mu r. This one is the maximum resistance. This one is mu r. Okay. Is there any confusion now? No, sir, everything is clear. Okay. When body is at rest, friction is less than equal to mu r. The friction may be maximum. The friction may be less than the maximum. Okay. Is this clear? Yes. Okay. And after that, this one is very important concept. When the applied force is equal to the resistance, or the force in the direction of motion is equal to the resistance, is equal to the maximum friction. This situation is known as limiting equilibrium. Is there any confusion? तो सर जो 80 और 80 दोनों साइड पे जब लग रहा होगा वो लिमिटिंग इक्वल. Yes. And the third one is, this one is the first case. This one rest. This one is limiting equilibrium. And the third one is when the body starts to move, friction will remain at its maximum, will act at its maximum value. When the object friction is maximum all the time. And is mu r. Okay. Any confusion? सर एक मिनट. Please repeat your question. सर थर्ड वाला मुझे समझ नहीं आया. Okay. We had a match of arm wrestling. Your maximum capacity of resistance is 80 newtons. And when I will apply a force of 10 Newton, you will try to balance your arm and you will generate a force of 10 Newtons. When I will apply 50, you will generate 50 Newton resistance and there is an equilibrium. When I will apply 80, and you will generate 80 Newton resistance, and at that moment, the system is in limiting equilibrium. Is this clear?
The forces on both the sides, that is the resistance and the applied force, are 80-80. Yes, sir. When my force will increase from 80 to 80.001, the force in the direction of motion is greater the force opposite to the direction of motion, that is your maximum resistance, and the object will starts to move. What is the value Okay, of the sir. resistance throughout the motion when your arm is moving downwards? से 80 न्यूटन ही रहेगा, सेम रहेगा. Yes, when the object will starts moving, friction is maximum all the time and is equal to the maximum friction, that is mu r. Should I repeat? Yes, sir. सर मैं समझ गया. Is there any other question? No, sir. Now, we will attempt questions from exercise 5a, which is about the friction. The diagram shows horizontal forces of magnitude P and Q. P is on the left side, Q is on the right side, acting in opposite directions on a block of mass 5 kg. First of all, we will draw the forces. This one is 50 Newton. This one is normal reaction, R. Okay, which is at rest on a horizontal surface. If the body is at rest, then the friction may be maximum or less than the maximum. There may be a limiting equilibrium, or the friction is less than its maximum value. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now, state in terms of P and Q the magnitude and the direction of the frictional force acting on the block when P is greater than Q. P, the force on the left hand side, is greater than the force on the right hand side. Now, the body has the tendency to move towards the right or towards the left. पता नहीं. P is greater than Q. The body has a tendency to move towards left or right. सिर्फ दोनों पे हो सकता है. P is greater. अच्छा, तो फिर लेफ्ट. Left. The direction of the resistance force, direction of the friction will be क्यू. towards Q, opposite, towards the right side. Okay. यस सर. And this one is the जी सर. frictional force. This one is the frictional force. Question number 1. Now, is this body in equilibrium? यस. Because it is at rest. The Yes. force on the left hand side is F, P, and on the right hand side there are two forces, Q plus F. So the frictional force is P minus Q. Is there any confusion? कहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्सेस टुवर्ड्स क्यू? Which one is greater? P is greater or Q is greater? अच्छा सॉरी सर, मुझे लगा वो ऑप्शन चूज करना है. सही है, मैं समझ गया. Okay. तो पार्ट. ओके सर. Should I repeat or we should move towards the next part? सर मैं समझ गया. तो बस ये अगर P ग्रेटर देन Q है तो इसका फ्रिक्शन दूसरे साइड पे होगा. Yes. तो P इज इक्वल टू Q प्लस F हो जाएगा. And F is equal to P एंड minus Q.
अच्छा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना था हमें। Yes, we want to find out the friction, the magnitude of the frictional force. Now, in the second part, you can see that Q is greater. The body has the tendency to move towards left or to right or towards right. फिर राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स हम लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करेंगे। Yes, yes, yes. This one is A part. And for the B part, can you please help me to write down the equation? जी सर, एक मिनट। ये हो जाएगा Q is equal to P plus F, F is Good. equal to Q minus P। Yes, this one is the question to this answer. The answer to this question, sorry. Now, question number 2. In question number 2, the diagram shows a horizontal force of magnitude P and 100 Newton. P on the left, 100 on right. Acting in opposite direction on the block of 50 Newton, which is at rest on the horizontal surface, given that the coefficient of friction between the surface, between the block and the surface is 0.4. The value of mu is given 0.4. Find the range of possible values of P. Now, I will elaborate this concept with the help of a example. अब ये देखें कि we are working on a rooftop, hill shaped rooftop, एंड हम क्या कर रहे हैं, एक वहां पर एरियल मैस लगा हुआ है, उसको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी हेल्प कर रहे हैं और आप जो है नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं। सही। अब आपकी टेंडेंसी किधर है मूव करने की? नीचे। नीचे की तरफ है। आपको नीचे की तरफ, आप एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर खड़े हैं, आपको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? मेरा वेट। वेट खींच रहा है। वेट का कौन सा कंपोनेंट खींच रहा है आपको? एम जी। एम जी साइन थीटा। बिल्कुल सही है। ये आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर खड़े हैं, ये आपका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेट। दिस एंगल इज थीटा, दिस वन इज एम जी साइन थीटा, एंड दिस वन इज एम जी कॉस थीटा। आपको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? एम जी साइन थीटा। एम ठीक है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, राइट साइड पे, टॉप राइट की तरफ। ये अप द प्लेन होगी। किधर होगी? अप द प्लेन होगी। अब तो ठीक है, अप द प्लेन होगी। अब आपको लगेगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा, आपको लगेगा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे मसल्स थकते जाएंगे। आपको लगेगा कि एक ऐसा मोमेंट आएगा, आपको लगेगा कि सर की फोर्स थोड़ी सी और कम हुई तो मैं नीचे स्लाइड कर जाऊंगा। जी सर। होगा? क्या उस वक्त जी सर। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों तरफ फोर्सेस यस। बराबर हो जाएंगी। जैसे ही मेरे मसल्स थकेंगे, मेरी फोर्स थोड़ी सी और कम होगी, आप नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। जी, होगा। जी सर। उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगी? फिर सेम हो जाएगी। किसके सेम हो जाएगी? जितनी अप्लाइड फोर्स है। उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी बेटा जी। आपको याद है जब आप मेरे साथ आर्म रेसलिंग कर रहे थे तो आप
जब मैंने 80 लगाया था तो आपने भी 80 रेजिस्टेंस जनरेट कर ली थी, और उस वक्त लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आ गया था। उस वक्त आपकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गई थी, और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है वो म्यू आर के इक्वल हो जाती है। याद करवाऊं दोबारा? सर मैं समझ गया। ठीक है जी। इस वक्त फ्रिक्शन म्यू आर हो जाएगी, लेकिन ये देखें कि यहां से मैं भी ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, ये मेरी फोर्स लग रही है जो मैं आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लू कलर वाली। ठीक है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आ जी गया। सर। अब यहां पर एक फोर्स एक्स मैं भी लगा रहा हूं। अब इस केस में लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। इस केस में क्या होगा कि आपकी टेंडेंसी नीचे की तरफ मूव करने की है, आप लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन स्टिल फोर्सेस बैलेंस है। क्या है? एक्स प्लस म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो सर एक्स क्या चीज है? मैं फोर्स लगा रहा हूं ना, मैं भी तो खींच रहा हूं ना आपको ऊपर। जी सर मैं समझ गया। ठीक है, अब दूसरा केस देखें। दूसरा केस को डिस्कस हम करते हैं। अब मैं कहता हूं मैंने अयान को बचाना है, मैं अपनी फोर्स इकट्ठी करता हूं और दोबारा एक दफा आपको ऊपर पुल करने की कोशिश करता हूं। क्या एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको लगेगा कि सर की फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो आई विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन? यस सर। उस वक्त बॉडी की टेंडेंसी किधर है मूव करने की? अपवर्ड्स, अप द स्लोप। एंड फ्रिक्शन इज लेस देन फ्रिक्शन इज डाउन द स्लोप। स्लोप। फ्रिक्शन इज डाउन द स्लोप, ऐसे ही है ना? जी सर। और क्या जी इज दिस केस, इज दिस अ केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम? व्हेन यू आर फीलिंग दैट in the next moment you will move upwards? यानी कि उस वक्त फोर्सेस इक्वल हो चुकी हैं, और आपको लग रहा है जैसे ही फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होगी सर की, तो मैं ऊपर की तरफ मूव कर जाऊंगा। जी सर। होगा कि नहीं होगा? क्या ये भी लिमिटिंग जी। इक्विलिब्रियम का केस होगा कि नहीं होगा? जी सर। या अगर ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस है, तो ये जो म्यू आर है ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाती है। फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी और म्यू आर के इक्वल होगी। जी। फिर बताऊं? मैं समझ गया सर। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा इक्विलिब्रियम ही, लेकिन x प्लस एम, एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू म्यू आर प्लस एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जी। both are the cases of limiting equilibrium. One case is when the body has the tendencies to move down, and the second case is when the body has the tendency to move up the plane. Both are the cases of limiting equilibrium. अब इस केस में जो पहला केस है उसमें x is the minimum value, x is the minimum force exerted by me, x जो ऊपर खींचने वाली फोर्स है is the minimum। इस केस में क्या है? x is minimum। ओके। और दूसरे केस में क्या है? x is maximum।
x इज मैक्सिमम। ये दो केसेस हैं बेटा। जब भी वो कहेगा ना द बॉडी इज एट रेस्ट, फाइंड द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो फिर हम खुद इसमें सपोज करेंगे कि द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव अप, द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव डाउन। तो एक केस में x की मिनिमम वैल्यू आएगी, एक केस में x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और अगर x इन दो वैल्यूज के दरमियान में रहेगा तो बॉडी एट रेस्ट के ऊपर है। फिर एक्सप्लेन करूं इसको बेटा? जी सर। जी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं द डायग्राम शोज horizontal forces of magnitude P and 100 Newton acting in opposite directions on a block of mass 50 Newton. 50 Newton. This one is the normal reaction R, which is at rest on the horizontal surface, rest पे. Given that the coefficient of friction is 0.4, find the range of possible values of P. Find the rest पे रहना इसने. The body will remain at rest. We want to find out the range of possible values of P. That is P when P will lie in these two values, the body will remain at rest. Now, we will suppose two options. Number one, the body is in equilibrium, is in limiting equilibrium, and has the tendency to move towards left. A part is limiting equilibrium and has the tendency to move towards left. If the body has the tendency to move towards left, then what is the direction of friction? Right. This. Okay. Now, the body is in limiting equilibrium. There is an equilibrium. So we will put the forces on the left equal to right. And the equation is P is equal to F plus 100. And in case of limiting equilibrium, what about friction? What is the value of friction? F is equal to P minus 100. Okay. The friction is less than maximum, friction is equal to maximum, or when there is a limiting equilibrium, what about the friction? It is maximum or less than the maximum? इस क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन नहीं हुआ हुआ कि कुछ ग्रेटर है। बेटा मैंने यही आपसे कहा है कि जब भी वो क्वेश्चन में कहेगा ना कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी सच दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, तो फिर हमें दोनों केस लेने हैं। एक लेना है द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट एंड द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स राइट। मैंने खुद लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस ऊपर लिखा है कि नहीं लिखा है ए पार्ट के साथ? तो जब हमने खुद लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का केस लिया है कि द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फिर बेटा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रही होती है, फ्रिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम ही होती है। तो यहाँ पर P की जगह पे हमें म्यू आर लिखना पड़ेगा और प्लस 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू म्यू इज 0.4, R इज 50 प्लस 100, P इज इक्वल टू हो जाएगा 120 न्यूटन। ये एफ पे वो म्यू आर कैसे हो गया? बेटा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है ना, जी। जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता है तो फोर्स
जो है बॉडी जो है वो अपनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रही होती है। जैसे जहां हम आर्म रेसलिंग कर रहे थे तो आपकी भी 80 थी, मेरी भी 80 थी, तो आप उस वक्त लिमिटिंग इक्विलिब्रियम था। जैसे ही जो है मेरी फोर्स 80.001 होनी थी, आपके जो आर्म है उसने डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर देना था। और जब दोनों का 80 था तो वहां पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम था। जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम था तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी। ठीक है। फिर बताऊं? जैसे जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी तब हम म्यू आर लिख देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज म्यू आर। उस वक्त बॉडी मैक्सिमम रेजिस्टेंस जनरेट कर रही है। ओके सर। नाउ द बी पार्ट, हम अब कंडीशन लेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड object has the tendency towards right। अब इस केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो? जी बेटा। सर लेफ्ट। और म्यू आर किसके, और ये फ्रिक्शन जो है ये किसके इक्वल होगी इस केस में? म्यू म्यू आर। बिल्कुल सही। तो सर अब अब हमारी हम जो, जी 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 पूछें बेटा। तो हम ये लिखेंगे 100 इज इक्वल टू पी प्लस एफ। जी, P प्लस एफ इज इक्वल टू फिर 100, ये हो जाएगा P प्लस 100 इज इक्वल टू पी म्यू प्लस आर म्यू आर। इज इक्वल टू 100, P प्लस 0.5 इंटू, सॉरी 0.4 इंटू 50 is equal to 100, P is equal to 80. So the range of values of P, if P is in between 80 and 120, the body will remain at rest. And if the P is equal to 80, body is in limiting equilibrium. And if P is equal to 120, the body is in limiting equilibrium. ओह अच्छा। ओके सर, मतलब 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। G. Now question number 3. The diagram shows a force of magnitude 8 Newton acting downwards at 30 degree to the horizontal on a block of mass 3 kg. 30 Newton, which is at rest on a horizontal surface. Calculate the frictional force on the block. We will draw the normal reaction. This one is the normal reaction R. Now we will draw the components. Stand at the tail, move in the direction of motion, then perpendicular to the direction of motion. These are the directions of the components. This one is 8. If this angle is 30, this one is also 30, alternate angle. This component is 8 cos 30, and this downward component is 8 sin 30. Now this one is the figure. The body is at rest. What is the direction of the friction in this case? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाइड किस तरफ है? 30 is acting downward. इसका एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक डाउन की तरफ जा रहा है, तो बॉडी किस तरफ स्लाइड करेगी, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। तो फ्रिक्शन
राइट की तरफ जनरेट होगी। अब इसमें कोई जिक्र नहीं है लिमिटिंग का, या उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी। तो हम इसमें ये ज्यूम नहीं कर सकते कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम है या नहीं है। अच्छा जी, फिर बताऊं मैंने क्या कहा है। तो मैं समझ गया। तो ये अच्छा, अब बॉडीज एट रेस्ट, इक्वेशन क्या बनेगी, बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, इक्वेशंस बनाए, इक्वेशन बताएं बेटा क्या होगी। अम, ये होगा 8 cos थीटा इज इक्वल टू एफ। 8 8 cos 30 इज इक्वल टू एफ। ये जी, और तो कोई फोर्स नहीं। नहीं, फिर वो 8 न्यूटन वाला लेकिन यही आंसर होगा इसका। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ये होगी। अगर वो ये कहे द बॉडीज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अगर ये वो क्वेश्चन को ये कर दे, चेंज कर दे, द बॉडीज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो फिर हम एफ की जगह पे म्यू आर लिख देंगे। लेकिन इसमें उसने जिक्र नहीं किया होगा, यहाँ पे सिंपल जो है इसका आंसर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 8 इंटू 0.866। अच्छा, लेकिन सिर्फ वो उस तरीके से ही पता चल रहा था कि और भी वैल्यूज भी पता होता सॉरी, जरूरी सॉरी, रिपीट। है। जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन में और वैल्यूज ली ना, बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी। जब वो कहेगा ना फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, तो फिर हमें दो केसेस खुद बनाने पड़ेंगे। अगर वो कहेगा कि बॉडीज एट रेस्ट फाइंड फ्रिक्शन, तो जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी फ्रिक्शन हो जाएगी। जैसे और सिर्फ जो म्यू है वो 0.4 है, बेटा तो आर क्या, सॉरी, सिर्फ सेकंड वाले के अंदर म्यू 0.4 है, तो आर क्या होगा? आर बेटा 50 है ना। आर जो है, इन दिस अच्छा, केस आर इज इक्वल टू 50 है ना। म्यू आर, आर जो नॉर्मल रिएक्शन है, अप इज इक्वल टू डाउन, आर इज इक्वल टू 50 है। रेज कर दूं बेटा इसको। यस। अब जी एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसका, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, the diagram shows a block of mass 4 kg. We will draw the components. Forty, 40 sine 35, 40 cos 35. This one is the normal reaction R. Under the action of a force of magnitude P Newton acting up the plane, the coefficient of friction between the block and the plane is 0.45. Question number 8. Mu is equal to 0.45. Find the range of values of P. When there is a question, find the range of values of P, हम किस तरह आगे चलेंगे? Find the range of values of P. जी सिर्फ P is equal to 40 sin 35। नहीं, हम दो केसेस खुद बनाएंगे।
कि body has the अच्छा अच्छा sorry. tendency to move up the plane and there is an elliptic equilibrium. Body has the tendency to move down the plane and the body is in limiting equilibrium. Okay, Yes. जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था. अब हम करते हैं जी इसके ए पार्ट के लिए. ऑब्जेक्ट is in limiting equilibrium and the object has the tendency to move up. If the body has the tendency to move up the plane, then what about the direction of friction? Sorry sir. If the body has the tendency to move up the plane, then what about the uh, direction of friction? Down. Yes. And in case of limiting friction, friction is maximum or less than the maximum value? The same होगा. किसके सेम? Force applied. वो तो बेटा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, वो तो फोर्सेस तो बैलेंस होंगी. क्या होगा कि जो मैंने आपसे बताया था कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन मैक्सिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम से कम भी हो सकती है. अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के केस में मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम होगी, या ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो फिर भी फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी. इफ द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, फिर आम वाली मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि उस केस में क्या था. जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आ गया था, दोनों तरफ की फोर्सेस बराबर हो गई थी, तो रेजिस्टेंस क्या मैक्सिमम नहीं थी? ठीक है. इस केस में तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होती है? जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो. हाँ, तो वो उसकी वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं बेटा? सिर्फ म्यू आर से. जी से ये तो मुझे समझ आ गई. हाँ, म्यू आर बताना था ना आपने बेटा. तो म्यू कितना है? उसने 0.45 दिया हुआ है. नॉर्मल रिएक्शन बताएं कितना है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन से आ रही है हमारे पास तो और वो नहीं, किसके इक्वल नॉर्मल है? रिएक्शन होगा 40 cos 35. 40 cos 35. 40 फौरन से कैलकुलेट करके बताएं जरा क्या वैल्यू आ रही है. एक मिनट से सिर्फ मैं लिख लूँ. 0.4 40 cos 35. 36.05. दिस वन इज द फोर्स. अब हम दूसरा केस लेंगे. ऑब्जेक्ट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड द ऑब्जेक्ट हैज द टेंडेंसी जी सर. टू मूव डाउन. फिर बताओ. सर मैं समझ गया. अब बॉडी की टेंडेंसी किधर, अब बॉडी की टेंडेंसी है डाउन मूव करने की, फ्रिक्शन किधर जनरेट होगी? upwards.
इधर जनरेट होगी। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जी फिर हम लिखेंगे P प्लस एफ इज इक्वल टू 40 साइन नहीं, 35। हम बेटा उसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे फ्रिक्शन की? जी जी मैं आपको बताता हूँ। इससे हम पहले लिखेंगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू 40 साइन 35 माइनस पी। नहीं और नहीं 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 नहीं, व्हेन द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, व्हाट बाय अबाउट फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू आर। म्यू आर होगी, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो मैंने सिर्फ सब्जेक्ट बना दिया। नहीं, उस तरह नहीं करनी है आपने, हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा टास्क है, हमने पी निकालना है। म्यू कितना है? 0.45। जल्दी से इसको कैलकुलेट करें। और आर आपने निकाला हुआ है 40 cos 35। क्या आ गया पी? एक मिनट से एक बार देख लूँ। P प्लस एफ इज इक्वल टू 40 साइन 35, फिर एफ को हमने म्यू आर कर दिया, और फिर म्यू हमारा 0.45 है, और आर जो है 40 cos 35 है। सही है। ये हो गया 40 साइन 35 माइनस 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 40 cos 35 8.2। 2, 3 सिग्निफिकेंट, 8.2। 8.198 है, तो चलें, 8.2 8.2 इज ओके। So the range of values of P are, P is in between 8.2 8.2 and and 36.05। 36.05. Now, question number 11. A solid cylinder of mass 6 kg is held with its axis vertical in the jaws of a vice and is on the slipping downwards. Slipping downwards का क्या मतलब है? से वो इंक्लाइन प्लेन होगा मेरे ख्याल नहीं से। नहीं नहीं और नहीं, वो जॉब वाइस ये होता है बेटा, आपने देखा नहीं होगा वो आपने अक्सर रोड्स जब कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं तो एक लोहे का वो होता है, हादसा होता है, वो दोनों तरफ से चीज को हेल्ड करके ऊपर उठा लेता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेता है। फिर माइंड में नहीं आ रहा। चले, इसका उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते हैं कि सॉलिड सिलेंडर 6 kg इज लाइटली हेल्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। देखें, इसका एक्सिस इस वक्त वर्टिकल है सिलेंडर का जो मैंने बनाया है, इन द जॉज ऑफ अ वाइस एंड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउनवर्ड्स। इसका क्या मतलब है स्लिपिंग डाउनवर्ड्स? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सिर्फ उससे मैं समझ गया वाइस क्या होता है, वो मैंने देख ली उसकी ठीक पिक्चर। है, सिर्फ स्लिपिंग डाउनवर्ड्स, सिर्फ बस इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। जिस तरह जो वाइस है, जब उसे उसके नॉब को टर्न करते हैं तो टाइट होता है, तो इस चीज को होल्ड कर लेता है। हाँ अगर वो ठीक, ज्यादा टाइट नहीं हो तो वो चीज गिरने पे आ जाती है हाँ, इस गिरने नीचे। वाली चीज को आप अभी जो हमने सारा चीज पढ़ी है उसके साथ कनेक्ट किस तरह करेंगे आप? फिर हम वेट से कह सकते हैं, वेट नहीं की नहीं वजह से नहीं, एम जी। हम कहेंगे उसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे। इट जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, हम उसको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहेंगे बेटा। फिर बताऊं, जैसे आप मेरे साथ काम कर रहे थे, जैसे हम आर्म रेसलिंग कर रहे थे, तो जब दोनों तरफ 80 हो गई थी तो उस वक्त क्या था? जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स था आपका हाथ। जी सर। तो ये जस्ट पॉइंट ऑफ स्लिपिंग का मतलब क्या है कि ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमारे जेहन में क्या आना चाहिए? सिर्फ वो
फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है। यस, और उसकी वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होती है? म्यू आर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब वो कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ द जॉ इज 70, यानी कि यहाँ पर 70 फोर्स लग रही है और यहाँ पर, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से क्या निकलेगा? उतना ही 70, इधर से भी उतना ही 70, वो 70 की फोर्स लगा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इतना निकल रहा है। अब दो अच्छा जगह हाँ पर, जी, दो जगह पर कांटेक्ट हो रहा है, दो जगह पर कांटेक्ट हो रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, दो जगह से स्लिप करने की कोशिश कर रहा है, दो जगह पर फ्रिक्शन कांटेक्ट हो रहा है, दो जगह पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी। अच्छा। म्यू ऊपर की आर, तरफ की जैसे नीचे स्टेप हो रहा है। जी, म्यू आर, म्यू आर, अब इसका वेट उसने 6 kg दिया हुआ है, हम यहां पर 60 लिख लेंगे। ये 60 आ गया जी। अब ये जो म्यू आर है, म्यू आर, दूसरी साइड पे भी म्यू आर, अब जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, अप इज इक्वल टू डाउन। अब क्या है? म्यू आर, टू म्यू आर। यस, 2 म्यू आर इज इक्वल टू 60, 2 म्यू तो आर 30। इज म्यू इक्वल टू आर इज इक्वल 60, टू और ये बन गया जी, इसके अंदर आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? 30। ये नहीं पता। देखें गौर से, मैंने बोला भी है 70। 70 है। लेकिन से 70। नॉर्मल के अच्छा अच्छा। सरफेस के परपेंडिकुलर जो चीज जनरेट हो रही है वो नॉर्मल रिएक्शन। इस फिर 60 भी परपेंडिकुलर नहीं है? 60 तो बेटा वो तो वेट है, वो किसी चीज के कांटेक्ट की वजह से तो जनरेट नहीं ना हो रहा। फिर मैं समझ गया। अब म्यू इज इक्वल टू आ गया जी 3/7, ये आंसर आ गया जी इसका। अब ये मेरे ख्याल हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके, अब आपने ये एक्सरसाइज करनी है क्वेश्चन नंबर 12 तक, और बल्कि 13 तक यस। भी आप कर सकते हैं। ओके सर। और हम इसकी प्रॉब्लम्स को फिर कल एड्रेस करते हैं, अगेन एट 10 इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है। ठीक है मैं बस एक बार ये देख रहा हूँ।